हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल क्लास 10 स्टडी रेसिपी. So this is our second class. In the previous class I told you that in my second class I'll discuss the syllabus of social science. So today I'll only discuss the syllabus of political science. So we should proceed. So now I'm going to clear your third misconception, that is n number of people misinterpret that political science is only about politics. No, it's not. Politics is a different type of game, typical game, but in political science there are concepts of democracy, rights of people, freedom of people, duties of people, and etc. So hope your misconception number 3 is clear. So now we'll proceed. In this column you can see I have mentioned serial number, name of chapter in boards. This implies that whether it will come in boards or not, that I'm going to answer you. No worry about that. You will be noticing that I have not mentioned the chapter number or the marking. That I have not mentioned knowingly because our aim is not to only get marks. Our aim is to get knowledge. More and more knowledge we get, more and more knowledge we give others, more and more confidence we get, and that confidence we have to convert into self-confidence. Don't make it be overconfidence. Okay, so our first chapter is power sharing. You can see this line, in context of democracy. In context of democracy. So first of all, 3 marker question है ये. Democracy is the most preferential government, preferential and best government. पहले ये डिस्कस करूंगी, फिर एक और 1 मार्कर है. और ये क्यों है? डेमोक्रेसी में हमें राइट्स मिलते हैं अपनी गवर्नमेंट चूज करने को. हमें डिग्निटी मिलती है. हम अगर कोई गलती करते तो हमें वो करेक्ट करने की टाइम मिलता है. इट अलाउज द रूम्स टू करेक्ट द मिस्टेक. अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है. कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं. ओके, सो ये 3 मार्कर आपका क्लियर हो गया. अब 1 मार्कर क्वेश्चन है. एक स्टेटमेंट है जो अगर आपसे कोई पूछे ना, सीधा आप यही बोलो, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. ये स्टेटमेंट 1 मार्क में आएगी और पूछेंगे हु सेड दिस. You will answer proudly that Abraham Lincoln said this. Lincoln. Lincoln means Abraham Lincoln. Okay. So we'll understand basically what is power sharing. Power sharing is dividing or distributing the power among different levels of government, organs of government, different political parties and pressure groups, different social groups. पीपल को भी पावर मिलती है. सो वील अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बाय और थ्रू 2 केस स्टडीज. फर्स्ट वन बेल्जियम एंड सेकेंड वन श्रीलंका. बेल्जियम में उन्होंने अकोमोडेट की थी सोशल डाइवर्सिटी. श्रीलंका में उन्होंने मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट कर दी थी इम्पोज. वो हम चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे. एंड 1 मोर, आप ये वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि आपको इस वीडियोस में, सिलेबस की वीडियोस में
हर चैप्टर की क्लियरेंस हो जाएगी कि इस चैप्टर में ऐसे ऐसे है। और हाँ, पावर शेयरिंग के रीजंस क्या है, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। दिस इज बिकॉज ऑफ 2 रीजंस दैट आर मोरल रीजंस एंड प्रूडेंशियल रीजंस। अभी मैं उन्हें डीपली डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि हमें पढ़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए चैप्टर में। हाँ, मैं टाइप्स बता सकती हूँ। सेकेंड वन, टाइप्स ऑफ power sharing. First, vertical power sharing, horizontal power sharing. Vertical power sharing I'll discuss in federalism. That is our next topic. Vertical power sharing. Then horizontal. Horizontal में याद रखना आप लोग, horizontal में क्या आता है, HO. O for organs, organs of government. Power sharing among different organs of government. The organs are judiciary, legislative and executive. And the third one is power sharing among different social groups. Social groups में हमारे आते हैं SCs, STs, scheduled castes and scheduled tribes. तो उन लोगों को मिलती हैं रिजर्वेशन है उनके लिए अनटचेबिलिटी बैन कर दिए और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इंडिया में ये हुआ। और एक और विमेन के लिए, वैसे तो विमेन हैं बट कुछ कुछ एरियाज में दे आर लैगिंग बिहाइंड, सो उनको एम्पावर करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं और उनकी पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में बढ़ाने के लिए लोकल बॉडीज में 1/3 सीट्स रिजर्व्ड रखी हैं। एंड फोर्थ वन इज पावर शेयरिंग अमंग different political parties and pressure groups. Political parties की different ideologies होती हैं तो उनको वो follow करती हैं और उन सबको मौका मिलता है contest करने का election और rule करने का, majority form करने का। और pressure groups जैसे अभी किसी ने कोई स्कीम निकाली, कोई पॉलिसी निकाली, हमें वो पसंद नहीं है, हमने मार्चेस कर लिए, सो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली गवर्नमेंट को हम प्रेशराइज कर रहे हैं अपना डिसीजन चेंज करने के लिए। आपको नेक्स्ट है क्विज को अभी मैं बाद में देखती हूँ। क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस मैं डिस्कस भी कराऊंगी और आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नोट्स मैं आपको समझाते हुए भी कराऊंगी और लिंक भी मिलेगा। अब हमारी आती है क्विज। फॉर क्विज आई नॉट बी एबल टू गिव इट हियर बट ऑन Instagram our page is class 10th study रेसिपी। सो वहाँ पे मैं हर चैप्टर का अलग अलग स्टोरीज हाईलाइट करके रखूंगी, उसमें क्विजेज होंगी, आप उसको फॉलो करिए। इंस्टा पे आइए, आई से, क्योंकि थोड़ा सा पेन लोगे तो बहुत सारा गेन मिलेगा बट इसमें कोई पेन भी नहीं है। आजकल बहुत सब चलाते हैं इंस्टा, सो इट्स कॉमन। सो इन बोर्ड्स यस इट विल कम। इतना इजी चैप्टर क्यों नहीं आएगा भाई। यस, सेकेंड इज फेडरलिज्म। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट और वर्टिकल पावर शेयरिंग। मैंने बोला था मैं डिस्कस करूंगी, कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने V को अंडरलाइन कर रखा है। क्यों? सबसे पहले हम V बनाएंगे। V यस। सो हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, 1 2 3। सबसे पहले क्या आता है, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। ओके, ये हो गए। ये हमने 8th में भी पढ़ा है ऐसे स्ट्रक्चर, बट वो कोर्ट्स का था। सो अंडरस्टूड। ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है, यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सो ये क्या है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। वर्टिकल पावर शेयरिंग, वी से हम हमेशा ही डायग्राम बना के याद रख लेंगे। वर्टिकल पावर शेयरिंग मीन्स दैट फेडरलिज्म और वर्टिकल पावर शेयरिंग सेम है। सो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, डिविजन ऑफ पावर अमंग और विद इन 2 or more लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट।
अब इंडिया में तो 3 है, बाकी में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. सो हम ऐसे लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे कभी भी. सो अगला है फीचर सेम एज वर्टिकल पावर शेयरिंग. 2 पॉइंट्स आपके हो गए. बाकी हम जब चैप्टर में जाएंगे तब डिस्कस करेंगे. एस्पेक्ट्स, हमें पावर शेयरिंग कह रही हूँ. फेडरलिज्म क्यों होना चाहिए, फेडरलिज्म क्यों होना चाहिए. सो हमारी कंट्री में एक, सबसे पहले हम इसका मेन पॉइंट लिखेंगे, मेंटेन एंड प्रमोट. अब इनके सब पॉइंट्स हैं 2. फर्स्ट वन यूनिटी, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो आप चाहो तो, वरना हम चैप्टर में भी करेंगे तो आपको नोट्स में मिल जाएगा. सेकेंड वन है सोशल डाइवर्सिटी. ओके, 1 नंबर मिल गए. रूट्स. सो बेसिकली फेडरलिज्म डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ फेडरेशन फॉर्म्ड. मतलब फेडरेशन किस तरह से फॉर्म हुआ है उनको रूट्स कहते हैं. रूट्स दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन कमिंग टुगेदर, सेकेंड वन होल्डिंग टुगेदर. कमिंग टुगेदर में स्मॉल सब यूनिट्स अपने आप को इकट्ठा कर लेते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, अपने आपस में आ जाते हैं, बिगर यूनिट बनाते हैं. और क्या करते हैं, किस पर्पस के लिए पावर शेयर करते हैं, किस पर्पस के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए. और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है. फॉर एग्जांपल यूएसए. अब होल्डिंग टुगेदर में एक बड़ा यूनिट अपनी पावर अपने को सब यूनिट्स में डिवाइड कर लेता है और पावर शेयर करता है. यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से ज़्यादा पावरफुल होती है. और ये क्यों करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए. किस लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस. और कैसा होता है, इंडिया में होता है यार, हम यहाँ रहते हैं, हमें इतना तो पता होना चाहिए. इंडिया में ऐसा होता है. अब 4-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, ये 5 मार्क का भी आ सकता है और यूटी इसमें 3 मार्क का आ जाएगा. सो मैंने ये गलती करी थी, मेरे नंबर कट गए थे, सो मैं आपको ये बता रही हूँ, आप याद रखना. 4-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स कहाँ भी आए, पहले वैसे तो 3 आता है, बट एडवांस हो गए हैं तो 4 आएगा. सो इसका मीनिंग है लिस्ट. वो लिस्ट हम डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको बता दे रही हूँ लिस्ट कौन कौन सी होती है. सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की यूनियन लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट लिस्ट, लोकल की लोकल कह रही, कॉन्करेंट लिस्ट थर्ड टाइप की. पहले तो 3 होती थी, बट लेफ्ट ओवर मटेरियल को रेसिडुअरी लिस्ट में देखते हैं. यूनियन लिस्ट यूनियन गवर्नमेंट देखती है, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट देखती है, कॉन्करेंट लिस्ट दोनों देखती है. और अगर हो गया कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सो सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा डिसीजन. और रेसिडुअरी लेफ्ट ओवर जो टॉपिक्स आए, इश्यूज आए, उनको उसमें देखते हैं. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बहुत बात आया है. सो अब नेक्स्ट है हमारा जम्मू कश्मीर. इसको तो याद रखना है, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है. जम्मू कश्मीर को पहले पावर्स थे ना, स्पेशल पावर्स मिले हुए थे, अब नहीं है, बट फिर भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट वर था, डिस्क्राइब द स्पेशल पावर्स दैट वर गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर. सो इनको क्या था, अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन था, ओन लेजिस्लेटिव असेंबली, जो इंडिया में इम्पोज होते थे लॉज, और वो वहाँ फॉलो नहीं होते थे. सेपरेट नेशनल एंथम था उनका. सो अब ये छीन लिया, सही किया. अब सेकेंड है लैंग्वेज पॉलिसी. लैंग्वेज पॉलिसी में आपका 4th मिसकंसेप्शन आज ही क्लियर करूंगी. सब सोचते हैं कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, बट नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं कोई. इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, बट हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है. वो कॉन्फ्लिक्ट्स हम आगे पढ़ेंगे. सो फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि there is no national language, only 2 official languages of India are there, that are Hindi and English. Decentralization हम चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा हटके है, आप चैप्टर में अच्छे से पढ़ लोगे. नोट्स मैं आपको लिंक दे दूंगी जब डिस्कस करूंगी. क्विज के लिए अगेन इंस्टा पे आ जाओ. ये
बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। असर्शन रीजनिंग भी मिलेगा, पिक्चर बेस्ड आप रीड करोगे, मैं कराऊंगी उसका। थर्ड, हाँ, विल इट कम इन बोर्ड्स? यार इतना इजी चैप्टर क्यों नहीं आएगा? यस ऑफ कोर्स। चैप्टर नंबर 3, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। दिस इज नॉट मच वास्ट, थोड़ा हेक्टिक है, बट नहीं, पढ़ोगे तो सब होगा। इस चैप्टर का मेन मोटिव है देयर शुड बी नो इनइक्वालिटी। कोई इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी ही रहनी चाहिए। सो इनइक्वालिटी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा मेल और फीमेल ध्यान आता है। सो हम बढ़ते हैं आगे। सेक्सुअल और बायोलॉजिकल डिवीजन। ओके, बायोलॉजिकल डिवीजन बाय बर्थ हम मेल है, फीमेल है या अदर जेंडर के हैं। फिर आता है सोशल एक्सपेक्टेशन। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन क्या है? सोसाइटी ने मिस इंटरप्रेट करा है कि फीमेल्स को घर पे रहना चाहिए, काम देखना चाहिए, मेल्स को बाहर जाके काम करना चाहिए। ये नहीं है, और उसी के कारण वुमेन सफ़र करती है, जैसे चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, डाउरी सिस्टम, सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस। सो अब वुमेन को एम्पावर भी करना वैसे तो है, बट कई जगह लैक करती हैं। और एक और प्रॉब्लम है, एजुकेशन नहीं मिलती, और एक और वेजेस कम मिलती हैं। मेल्स वो भले सेम काम करें, उनको कम वेज मिलती है। सो वुमेन को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले क्या था? चाइल्ड मैरिज बैंड, सती प्रथा बैंड, डोमेस्टिक वायलेंस पे पनिशमेंट मिलती है, सीवियर पनिशमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट पे मिलती है। निर्भया वाला केस था ना, जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्टिस डिनाइड। उन लोगों को हुआ, फांसी हुआ, दे वर बीहेडेड। ओके, गिलिटेंड। सो हमारा वेजेस का प्रॉब्लम के लिए इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, मतलब इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को लागू किया गया, उसमें सबको सेम वेजेस मिलेंगी। और सेक्सुअल हरासमेंट में वो भी पनिशेबल ऑफेंस है। एजुकेशन के लिए पॉलिसीज है। और अगला है कम्युनलिज्म। कम्युनिटी, when a particular community promotes its selfish interest at the cost of other community। अपनी कम्युनिटी को बढ़ावा दे रहे हो और दूसरी कम्युनिटी को तुम गिरा रहे हो, इंफीरियर बना रहे हो। सो दिस ऑलवेज लीड्स टू हेट्रेड, हम हेट करने लगते हैं उस कम्युनिटी को, एंड इनटॉलरेंस, उस कम्युनिटी को हम टॉलरेट नहीं कर सकते। ये चैप्टर आएगा, ये बहुत इजी चैप्टर है। ये मेन क्वेश्चंस, ये इनके मेन क्वेश्चंस हैं, इन्हीं के अराउंड रिवॉल्विंग है चैप्टर, इसी पे है। और नोट्स आपको मिलेगा। मेन क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, अलग से भी नोट्स में भी करेंगे। क्विज, इन सब एक क्वेश्चंस मैं आपको इनके दे दूंगी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी पिक में डाल दिया करूंगी। एंड फोर्थ वन, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट। अरे ये तो, इसको तो कुछ करना ही है, पढ़ना है ही नहीं, प्रोजेक्ट बनाना। बहुत क्रिएटिव है हम लोग बहुत क्रिएटिव है। अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, टाइम पे सबमिट करेंगे, फुल मार्क्स लाएंगे। सो ये नहीं आएगा, इसका प्रोजेक्ट वर्क होगा। अब फिफ्थ है पॉलिटिकल पार्टीज में हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी। रोल, फीचर्स, चैलेंजेस, रिकवरी मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगी जब हम चैप्टर पे जाएंगे। डेफिनेशन, पीपल विथ सिमिलर आइडियोलॉजी और इंटरेस्ट कम टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। क्या करते हैं? सिमिलर आइडियोलॉजी के पर्सन जो होते हैं वो एक साथ आके पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं। और क्या करते हैं, क्यों करते हैं? टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड फॉर्म मेजॉरिटी पार्टी एंड रूल। बस सिंपल। एंड नेक्स्ट ये सब हम करेंगे। विल दिस कम? यार श्योर, इतना इजी चैप्टर है, ये तो मेन क्वेश्चंस ही हैं इसमें। यस, इट विल कम। हम टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट है हमारा 6 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। फिर से डेमोक्रेसी, प्रेफरेंशियल एंड बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कैसे है?
हमने रीजंस डिस्कस करे थे, वो मैं फिर से नहीं करूँगी, आपको नोट करना चाहिए था, और हम चैप्टर में भी करेंगे, नो वरी अबाउट दैट। सो डेमोक्रेसी क्यों पता चला, उसके आउटकम्स से, कॉन्सिक्वेंसेस से। ओके, सो डेमोक्रेसी के आउटकम्स हैं पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स। पॉलिटिकल मतलब कि हमने पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या किया, उसके 3 है टाइप्स। अकाउंटेबल, कितनी अकाउंटेबल है, कितनी आंसरेबल है वो अपने डिसीजंस के लिए। लेजिटिमेट, कि पीपल को वही रूल करते हैं जिनको वो इलेक्ट करते हैं। और रिस्पॉन्सिबल, उसने क्या क्या स्टेप्स लिए कंट्री के वेलफेयर के लिए, रिस्पॉन्सिबल है भी वो या नहीं। ओके, सो नेक्स्ट है सोशल। उसने सोशल में क्या है, सोशल डाइवर्सिटी, यूनिटी, पीस, इनको मेंटेन और प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए। इकोनॉमिक में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए। एंड लॉजिकल क्वेश्चंस। सो लॉजिकल क्वेश्चंस इन्हीं आउटकम पे रिवॉल्व करता है। अब हम आते हैं इन बोर्ड्स, या श्योर, मैंने पहले से ही टिक कर रखा है ताकि मेरे को ज़्यादा ना करना पड़े। 7th वन इज चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, दिस क्वेश्चन मार्क। सो नेक्स्ट वन इज चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्यों, क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड्स में नहीं आएगा, बट कुछ कुछ स्कूलों में ये ओपन बुक टेस्ट में भी ले लिया जाता है। सो उसमें कुछ नहीं करना, आराम से हो जाएगा। सो फॉर टुडे दिस मच इज इनफ, गुड बाय। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू रिमाइंड यू, जो आपने अभी तक नहीं करा है तो कर लीजिए, सब्सक्राइब आवर चैनल, और अपने बेल आइकन को पर्सनलाइज से हटा के ऑल पे चेंज करिए। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, इंस्टा पे हमारे पेज को फॉलो करिए। और कोई इम्प्रोवाइजेशन हमें करनी चाहिए, आपको और कुछ चाहिए और वो सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आपको चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए। और आपको क्या पसंद आया आज की वीडियो में वो भी बताइए। और हाँ, आज का मंत्रा है, रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। जो हम एजुकेशन पाने में मेहनत करते हैं वो थोड़ी कड़वी होती है, बट उसका रिजल्ट हमेशा स्वीट रहता है। सो गुड बाय।